ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ یوں تو ناظرین اسرائیل اور فلسطین کے اندر آپ یقیناً دیکھ ہی رہے ہیں، ہر گزرنے والا گھنٹہ، ہر گزرنے والا لمحہ، ہر گزرنے والا دن اور ہر شب اور ہر صبح ایک نئی خون آلود صبح ہے، جس کے اندر مسلم امہ کا خون بہہ رہا ہے اور ارضاں نرخوں پر بہہ رہا ہے، اور پوری کی پوری امت پانی میں بہتی اور بہتی اور بہتی چلی آ رہی ہے۔ افسوس کا مقام تو وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر صرف اور صرف کل گزشتہ دن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ کے اندر جناب عرفان صدیقی صاحب، جو مجھے ہوئے کالم نویس بھی تھے اور اس وقت سینیٹر بھی ہیں نون لیگ کی طرف سے، انہوں نے ایک چند منٹ کی سپیچ کی جس کے اندر لب لباب یہ تھا کہ اے اہل فلسطین، ہم آپ کی ہر طرح کی مدد، ہر طرح سے مدد، چاہے وہ معاشی مدد ہو، چاہے وہ آپ کو ویپنائز کرنا ہو، آرمڈ کرنا ہو، ہر طریقے سے ہم بے بس اور لاچار ہیں، ہم اتنی بڑی سینکشنز کا شکار ہیں، ہم یہ کیا پوری کی پوری مسلم امہ ہی شکار ہے، جس قدر آپ راکھ کا ڈھیر ہیں ہم 57 ممالک بھی راکھ کا ڈھیر ہیں، ہم اپنے مصائب اور مجبوریوں اور بے بسیوں میں IMF ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے بے بس ہیں۔ ناظرین یہ کنفیس بھی تھا اور یہ پیغام بھی تھا اور یہ سمجھنے کی بات بھی تھی کہ پاکستان ہو یا انٹرنیشنل ہو، کون رول کر رہا ہے۔ کیا اس صورتحال کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم کبھی استعمال ہو پائے گا؟ یہ غوری میزائل ہو، یہ شاہین میزائل ہو، یہ ڈیفرنٹ شکلوں کے میزائل ہوں، کیا یہ وقت پر آپ کے کام آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اسی طرح، اسی حال اور اسی انداز میں ہی رہیں گے۔ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں، اب پاکستان کی صورتحال کچھ بھی ہو، کیونکہ پاک اسرائیل دوستی اس وقت ہر لمحہ پروان بھی چڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان ایک اسرائیلی کالونی کا روپ بھی دھار رہا ہے، اور اس میں قوم ہو، ملک ہو، سلطنت ہو۔ اب اسے آپ ISI نہیں، صرف موساد ہی سمجھیے، یعنی پاکستان کا 24 کروڑ ملک اس وقت موساد ہی کی کالونی بن چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ صاحب نے جو گزشتہ دن تقریر بہت طویل ہے، ہم بہت زیادہ سوچ وچار میں تھے، کچھ لوگ اسے مدبرانہ تقریر کہہ رہے ہیں۔ اب جس انداز میں جو کچھ بھی ارشاد فرمائیے، زبردست کوشش ہے، مگر کوئی با کمال بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اس طرح کریں گے۔ ایک کام کی بات انہوں نے کی، 2050 کے اندر اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، یعنی آج 2023 کے اندر ظلم اور ستم اور لہو مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، اور آپ وعدہ اور دعویٰ 2050 کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، جتنا زبانی گولہ باری ہو سکتی تھی اس قدر انہوں نے کی، اور کیوں نہ کی۔ آپ ملی بھگت کا اندازہ لگائیے، جس وقت وہ سپیچ دے رہے تھے لبنان کے اندر، ان کا انٹرنیٹ فل رینج کے ساتھ ان کو پرووائڈ کیا گیا، کہاں سے پرووائڈ کیا گیا، اور انٹرسیپٹ بھی نہیں کیا گیا، وہ اسرائیل ہی کی طرف سے کیا گیا۔ ناظرین پھر اس بات کو ہم اب کیا سمجھیں، کس سمت میں سمجھیں؟ غدر کا سماں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نیتن یاہو نے کہا کہ ہم مسیحا کے انتظار میں ہیں، ہم دو ہاتھ اس بار کرنے کے چکر میں ہیں، آپ آگے آئیے، ہم آپ کو دمشق میں ملیں گے۔ ناظرین یہ ایسے نہیں کہا گیا، یقیناً کسی کارگزاریوں اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے کہا گیا۔ ناظرین آپ کی سکرین پر اس وقت ہم ایک میپ شیئر کر رہے ہیں، اس میپ کو دیکھیے، دو اطراف سے کس قدر جنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلیک ڈاٹس ہیں وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ ڈاٹس ہیں یہاں پر جنگ ہو رہی ہے۔ دونوں اطراف سے 2 وے میں اسرائیلی فورسز اندر کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور سمندر کی تمام تر سائڈ غزہ کی کٹ کر دی گئی ہے، یعنی سمندری اگر راستہ ہوگا تو اسرائیل کے پاس ہوگا، اور اس طرف ہوگا تو اردن، لبنان یا مصر ہوگا، جس میں فلسطینی جکڑ اور گرفت میں آ جائیں گے، یعنی لینڈ لاکڈ ہو جائے گا مکمل طور پر۔ یعنی اس سمت والے لوگوں کو اگر کچھ درکار ہوگا تو وہ اسرائیل ہی کے مرہون منت ہوگا۔ کس قدر اسٹریٹجی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا بم بھی موجود ہے جو آپ نے نہ سوچا اور نہ ہی دیکھا ہوگا، اور جو کچھ اب تک ہوا ہے، ناظرین یہ انتہائی معنی خیز بات ہے، جو کچھ اب تک ہوا ہے یہ ہماری پلاننگ اور مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اس بات کو اب آپ کس طرح
समझेंगे। यही वजह है कि हमास अब तक खातर खा जवाब नहीं दे सकी, अपने पहले हमले का जवाब नहीं पेश कर सकी। बहरहाल खून तो बह रहा है। इस वक्त इसराइल की 15 से ज्यादा गाड़ियों को नजर आतिश किया जा चुका है। साथ साथ आपको बताते चलें, फलस्तीन के अस्पताल पर एक बार फिर हमला हुआ है। पूरे का पूरा अस्पताल बमा एम्बुलेंसेस निस्तो नाबूद हो गया, जमीन दोज हो चुका है, जमीन बोस हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है, मगर इसराइल के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। दूसरी तरफ यह है कि रूसी पार्लियामेंट ने नए एटमी तजर्बात करने से जो दस्तखत करने थे, जो उन्होंने आगे करने थी, वह एक शिक थी, तौसीक करनी थी, उसकी तौसीक से इनकार कर दिया है। साथ साथ आपको बताते चलें, बोलीविया एक वाहिद कंट्री है जिसको थोड़ी सी गैरत आई, जिसने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें, बहरीन भी उन ममालिक में शामिल है जिसने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। माल्टा में एक अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट, जो हमास और हिजबुल्लाह के असला को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। नहीं कोई सफारती ताल्लुकात अव्वल तो है नहीं। और जो हसन नसरुल्लाह साहब ने बात की कि मुस्लिम ममालिक तेल ही देना छोड़ दें, कैसे छोड़ें जब अबू ज़ैबी से रिफ्यूलिंग हो रही हो, कतर सपोर्ट कर रहा हो और लगभग 82 से ज़्यादा फ्लाइट्स इस वक्त उर्दन से ली जा रही हो, और शाह अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे फरमा रवा हैं, जो इस वक्त कहलाते हैं उन लोगों में से, शरीफ मक्का की फैमिली में से हैं, जो बनु हाशिम में से हैं, वो जंगी वर्दी पहनकर सिर्फ यहाँ और वहाँ और वहाँ और यहाँ तशरीफ लाएं तो क्या कहा जाए, यानी मुनाफकत और खुली मुनाफकत है। नाज़रीन अब तक जो गजा के अंदर है फास्फोरस बम्बिंग चलाई जा रही है, और दूसरी बात यह है कि लगभग 18,000 टन बारूद इस्तेमाल हो चुका है। नाज़रीन 18,000 टन, लगभग फ़लस्तीनियों की जो टोटल आबादी है 21 से 22 लाख तक है, जो तकरीबन 42 से 45 किलोमीटर गजा का एरिया बनता है। अमेरिका ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त की है, मगर बीबी बेंयामिन नेतन्याहू ने किसी तरह की जंग बंदी से इनकार कर दिया है। उसका कहना यह है कि जंग बंदी का मतलब यही है कि हम हमास के आगे हथियार डाल चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम किसी बड़े काम के पेश खेमा हैं। और आपको बताते चलें, पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 19 मकामात पर इस वक्त हमला किया है, और ईरान की जो भरपूर मदद शामिल है इसके अंदर, कोशिश भरपूर की जा रही है ईरान साथ दे, लेकिन कहाँ तक दे, जहाँ चारों एतराफ में मुनाफिकीन ममालिक की शक्ल में मौजूद हों। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के 53 गाँव लगभग इसराइलियों से खाली हो चुके हैं, और अब सूरत हाल ये है, ईरान भी वाज़ेह कर चुका है 7 अक्टूबर का होने वाला हमला हमास ने खुद किया था, हमारी एंट्री 8 और 9 अक्टूबर को हुई है। बहरहाल इस वक्त शहादतें हैं बढ़ती चली जा रही हैं, नए ब्लॉक्स की ज़रूरत है। आप महातिर मोहम्मद को देखें, अगर वो जिंदा होते, तैयब उर्दगान या इमरान खान का हाल देखें तो ये नया ब्लॉक बनता, नई शक्ल आती। यही वजह है रिजीम चेंज ऑपरेशन में इमरान खान को भी रगड़ा लगाया गया। और साथ साथ ये है कि इस्राएली जनरल का आज एक बयान बड़ा बाकमाल आया, जिसमें उसने कहा कि हम एक एटॉमिक बम चलाएंगे और पूरे का पूरा इसराइल अपना गजा निस्तो नाबूद हो जाएगा। यानी ये बहुत गैर इंसानी किस्म की बात है, बहुत बड़ी धमकी है जो दी गई है। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ आलम मुस्लिम उम्मा का आलम यह है, इंडियन प्रीमियर लीग में सऊदी अरबिया 30 अरब रुपए $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है आईपीएल के अंदर। कतर के अंदर जनाब अमरीकी बेसेस बन चुकी हैं। और दूसरी तरफ यह कि पाकिस्तान में जो मुहाजिरीन अफगानिस्तान के हैं उनसे पुलिस की लूट मार का सिलसिला अपने अरूज पर है। हम अपने प्रोग्राम में इस पर खालिस्तान बात करेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये जुल्म और सितम क्यों किया जा रहा है। अगर कुछ करना ही था तो उसका कोई तरीका वजह कीजिए, कुछ फार्मूलेशन बनाइए, ये तो मत कीजिए कि पुलिस लूटने लाटने पर लग जाए। साथ ये है कि पारा चनार के अंदर आप देख चुके हैं इस वक्त फिरका वाराना फसादात की एक नई शक्ल बन चुकी है, कब्जा माफिया इंच हो चुका है। साथ साथ मियां वाली एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला भी आपके सामने है, हमारी समझ से बाहर है। 7 दहशतगर्द तो मार दिए, जिंदा कभी क्यों ना पकड़े, जो पकड़ा भी एहसान टीटीपी का उसको छोड़ दिया, अब वो गिरफ्तार होता है तो अफगानिस्तान और तालिबान के अंडर होता है। नाज़रीन हम क्या से क्या बात करें, जहां खुरासान डायरी की बात करें तो वो कहते हैं हमने एयरबेस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था,
लगता यही है कि पाकिस्तान में भी गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ी चाल है नाज़रीन, जो आलमी साजिशी थ्योरियां हर लम्हा 2-2 कदम आगे से आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। और आखिरी बात आपको बताते चलें, पाकिस्तान में तो चूरन बेचा गया शिया और सुन्नी फसादात का, मगर दूसरे अतराफ में आप जाकर देखिए, आज एक वफद पहुंचा है अफगानिस्तान का ईरान चाबहार के अंदर, यानी हिंदुस्तान बदरिया चाबहार जो कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड की, पाकिस्तान को माइनस करके वहां तो कट्टर देवबंदी कहें या इस वक्त तालिबान लीडरशिप कहें, वो बैठी टेबल के ऊपर। किन के जो एलीट शिया हैं, जिनको ईरानी शिया कहा जाता है, और प्रोडक्ट किन का था, यानी हिंदुस्तान टोटल हिंदुओं का। तो फिर आप हमें बताइए, आप तो यहां पर नारे लगाते रहे शिया 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 काफिर, तो यहां तो कैफियत उलट और उलट चुकी है। मुकम्मल ट्रेड भी हो रही है, गुफ्तो शनीद भी हो रही है, और गिफ्ट्स का तबादला ख्याल भी हो रहा है, और देरपा और दूर रस 25-25 साल 30-30 साल के मुआहदे किए जा रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है, ये कौन सी हकीकत है? इसका मतलब है पाकिस्तान को कल भी मजहब की शक्ल में इस्तेमाल किया गया था और आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, मुस्लिम उम्मा का लहू है जो बहता चला जा रहा है। जहां वो मातम कना है, जहां हम भी मातम कना है, सिवाय मातम करने के और ना तो कुछ आप कर सकते हैं, ना आपकी हैसियत और औकात है। जहां तक पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब का सवाल है, या DGI या दीगर लोगों का सवाल है, ये खुद इस वक्त इसराइली पनाहगाह में जा चुके हैं, ये खुद इस वक्त इसराइली कॉलोनी बन चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में यूं भी हक और बातिल का तराजू एक सिमत में झुक चुका है, ना सिर्फ झुक चुका है बल्कि कंप्रोमाइज हो चुका है। मजीद अहले फलस्तीन की हम क्या मदद करेंगे? सिर्फ सलाम ही कर सकते हैं, चंद दुआएं हैं वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अमली तौर पर मुकम्मल पूरी की पूरी उम्मत 1.5 अरब से मुसलमान, ज्यादा मुसलमान 1.5 अरब से ज्यादा गैर